Hey you there everybody, my name is Ujjwal and welcome to my channel The Unique Ujjwal. Guys, first of all I'm sorry that I'm uploading video after so many days, and as you know I am on ship and my vessel is going in the dry dock and we have to do a lot of jobs if the vessel is planned to go in the dry dock. And now here we are, right now I'm in China, and probably tomorrow morning I'll go in the dry dock, in the dock actually. And the thing is we have to inspect every single thing on the vessel so that we can send it to the company, that what maintenance we need to do on board and what are the things we have to paint it here on the ship. So that's why actually vessel is usually going in the dry dock twice in a 5 year. And so now finally I got the time for making this video. And in between, so many guys was keep on asking about the fitter, how to join in merchant navy as a fitter. I don't have, actually I wasn't know about fitter, that how to join, what is the eligibility criteria for the fitter and all. So I collect information from the fitter who is working over here. And actually I want to put in front of the camera, but he is shy and he's actually not comfortable in front of camera, so I collect information from him. And actually I made a few clip also, because the guys was asking what is the job of fitter, what is the salary, how much the contract is, and whether I can join on ship as a fitter directly or I need some experience. So all of this information I will give you right now, so stay tuned with me. Let's start the video. So guys, apart of this, fitter has to do more jobs. Actually all this short clips I found when I was on safety round on deck after my watch. So actually we on ship we used to call that fitter is a right hand of second engineer. इसलिए कुछ भी टेक्निकल काम निकलता है शिप पर, तो वो या इंजन साइड में या फिर डेक साइड में कहीं भी फर्स्ट वी कॉल फिटर. इसलिए दोस्तों इफ़ यू वांट टू बी अ फिटर ऑन शिप यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट. ओके, सो फॉर नीड टू बी वेरी स्मार्ट यू नीड टू हैव अ गुड ट्रेनिंग. Okay, so now I'll give you all the information point wise point, as you know that I'll always tell you point wise point, so you can easily figure it out. And if I'll not cover any topic, so you can ask me or ping me in comment section wherever you want. Okay, so as you know, the first point, the eligibility दोस्तों, the eligibility is 10th pass only. There is no any particular degree you need for the fitter. अगर आप 10th पास हो, उसके बाद आप ITI करो. ITI में भी उसमें जो कोर्सेज होते हैं ना, उसमें अगर आप टर्नर के कोर्स कर रहे हो या फिर डीजल मैकेनिक के, तो आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा. कि आप शिप पे भी काम कर सकते हो. और इनकेस अगर आपको शिप पे काम नहीं जम रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्रू अच्छे नहीं मिलते या कुछ भी अच्छे नहीं मिलता है, तो बहुत लोग मर्चेंट नेवी छोड़ देते हैं. एंड अभी कुछ दिन पहले एक डेक कैडेट का डेथ हुआ था, बहुत ही वायरल हुआ था वो फोटो, क्योंकि हरासमेंट की वजह से कैप्टन चीफ ऑफिसर उसको बहुत हैरास कर रहे थे, इसलिए उसने सुसाइड किया. तो ऐसे दोस्तों बहुत कुछ है. ये तो आज इंटरनेट इतना वास्ट हुआ है, तब ना जब मैं ज्वाइन किया था उस टाइम में तो कितने सारे केसेस ऐसे हुए जो अपने को मालूम नहीं रहता. ये तो आज के टाइम में मालूम चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. इसलिए मैं हमेशा इंजीनियर्स को सपोर्ट करता हूँ जो इंजन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं. मैं बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि उनके लिए लैंड पे भी जॉब है. और ये फिटर का जो कोर्स करोगे आप, डीजल मैकेनिक या फिर टर्नर का, तो इसके अलावा आपके पास लैंड पे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे.
तो जैसा कि शिप के जो फिटर ने उसने बताया मुझे ये चीज़ कि अगर वो ये कोर्स करके उसके बाद मर्चेंट नेवी में आ रहे हैं देन इट्स गुड फॉर देम। दोस्तों अगर आप ITI कर चुके हो तो इसके बाद आपको एक इंडियन CDC की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक तरह का सर्टिफिकेट है एक्चुअली, CDC कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये पासपोर्ट के साइज़ का होता है। इसके लिए आपको GP रेटिंग का कोर्स करना पड़ेगा, और GP रेटिंग कोर्स आप कोई भी DG अप्रूव्ड कॉलेज से कर सकते हो। ओके, वहाँ से आपको इंडियन CDC वो कॉलेज प्रोवाइड करा देगी। उसके बाद आपको 6G सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, जो वेल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। वेल्डिंग में 6G सर्टिफिकेट होता है कुछ, जैसा कि फिटर ने बताया। और ये जो आपको कॉलेजेस दिख रहे हैं, इस कॉलेज में आप जाके ये सर्टिफिकेट ट्रेनिंग करके ये सर्टिफिकेट आप ले सकते हो। ओके, और ये इसके अलावा दोस्तों एक और तरीका है इंडियन CDC लेने का, STCW कोर्स करके। ये आपका 13 दिन का कोर्स होता है, शायद 13 दिन या 15 दिन का कोर्स। इसके बाद आप इंडियन CDC के लिए अप्लाई कर सकते हो MMD में जाके। ओके, बट अभी दोस्तों देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों STCW वाले को जॉब नहीं मिलती है। एक्चुअली GP वाले को भी जॉब नहीं मिलती है, बट इन केस अगर वैकेंसी आया तो देखो आपको इंडियन CDC 13 दिन के बाद मिल रहा है। ओके, वही चीज़ GP वाले को इंडियन CDC 6 महीने के बाद मिल रहा है। मतलब वो लोग कुछ तो पढ़े होंगे ना, इसलिए दोस्तों GP रेटिंग वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। अगर दो इंटरव्यू के लिए, अगर सपोज मेरे पास STCW है, आपके पास GP रेटिंग कोर्स है, हम लोग फिटर के लिए अप्लाई किए, एक ही कंपनी में एक वैकेंसी है दोस्तों, 2 जॉब आपको मिलेगी, मेरे को नहीं, क्योंकि आपके पास GP रेटिंग या कोर्स है। और कंपनी को भी अच्छे से पता है ये चीज़ कि GP रेटिंग या कोर्स है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगा कंपेरिजन टू मी जिसके पास STCW कोर्स है। ओके, तो इसलिए दोस्तों एलिजिबिलिटी आपको क्राइटेरिया क्लियर फिगर इट आउट हो गया। अगर आप 10th पास चाहिए, ITI में कोर्स ITI होना चाहिए, प्लस उसके बाद इंडियन CDC, देन 6G सर्टिफिकेट, क्योंकि ये मार्क्स में रिक्वायरमेंट है। एंड आई नो जितने भी रेप्यूटेड कंपनी है उसमें भी 6G सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों एज दोस्तों नॉर्मल है, 17 से लेके 25 साल तक की उम्र में आप GP रेटिंग का कोर्स करके इंडियन CDC ले सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कोर्स फी एक्चुअली देखो दोस्तों, जब आप 10th क्लियर कर गए हो उसके बाद ITI आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो, उसका मुझे आइडिया नहीं है कि कितना चार्जेस लगेंगे। आप इंटरनेट पे देख सकते हो कि ITI करने में क्या चार्जेस लगते हैं। बट मर्चेंट नेवी में जो आप कोर्स करोगे उसका मैं एक्जैक्टली बता सकता हूँ। GP रेटिंग आप कोर्स करने जाओगे तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपये चार्जेस होते हैं, डिपेंड्स ऑन कॉलेज, जैसे उनकी फैसिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनके चार्जेस होते हैं। बट GP रेटिंग कोर्स करने के लिए दोस्तों कोई ऐसा अच्छे कॉलेज देखने की जरूरत नहीं है जहाँ पे आपको सस्ता लग रहा है कोर्स, वहाँ पे सस्ता है। अभी बहुत सारे कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे 180 170 में भी कोर्सेज हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। बट मेक श्योर वो DG अप्रूव्ड हो। ओके, DG शिपिंग से अप्रूव्ड हो तभी आपको इंडियन CDC मिलेगी, नहीं तो आपको इंडियन CDC नहीं मिलेगी। ओके, और जब आपको इंडियन CDC मिल जाएगी फिर 6G जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए वेल्डिंग के बेस पे, उसके लिए आपको जो कोर्स फी है वो है 40 से लेके 50,000 के अराउंड है। वो जितने कॉलेज के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जो मैंने कॉलेजेस बताया। तो आपका 2.5 लाख में शिप पर आने के लिए एज अ फिटर आपके ये कोर्स फी है 2.5 लाख रुपए। ओके, थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों दो कॉलेज मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ओके, वहाँ पर या फिर अभी भी आप वापस से देख सकते हो, ये जो कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जाके आप 6G का सर्टिफिकेट ले सकते हो। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट है दोस्तों एक्सपीरियंस। क्या होता है दोस्तों, देखो अभी फिटर का ऐसा जॉब है ना, मोस्टली कंपनी प्रेफर उनको देती है जो लैंड पे जॉब किए हुए हैं, क्योंकि फिटर का जॉब आप लैंड पे इजीली कर सकते हो। मोस्टली अभी क्या है, मार्क्स में तो मोस्टली ये आंध्र प्रदेश के आते हैं या फिर बंगाल साइड से आते हैं। बहुत कम फिटर होते हैं कि अदर अपने नॉर्थ साइड से आए हुए हों, क्योंकि क्या है वो लोग ड्राई डॉक में काम किए रहते हैं। उस साइड में थोड़ी शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप है, वो लोग ड्राई डॉक में काम किए रहते हैं, उनको मालूम रहता है शिप का, इसलिए कंपनी उनको ईजिली ले लेती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको फिटर पे कहीं किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में या कहीं भी आपने काम किया होगा तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, जब आप कंपनी में अप्लाई करने जाओगे, कोई भी कंपनी आपको फिटर डायरेक्टली कभी नहीं लेगी, हमेशा दे विल हायर यू एज अ ट्रेनी फिटर। अगर कोई बोलता है एजेंट या फिर कोई भी बंदे बोलता है कि आप ये कर लो कोर्स, GP रेटिंग कोर्स करो, इंडियन CDC ले लो, 6G सर्टिफिकेट ले लो, उसके बाद मैं आपको शिप पे चढ़ाऊंगा एज अ फिटर, तो वो झूठ बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि यू विल फर्स्ट गो एज अ ट्रेनी फिटर, 2-3 शिप के बाद जैसा आपका ये परफॉर्मेंस रहेगा, जैसे आपके अप्राइजल मिलेंगे सेकंड इंजीनियर या चीफ ऑफिसर के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग कंपनी फिर आपको प्रमोट करेगी।
ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, आप फर्स्ट एज अ ट्रेनी फिटर ज्वाइन करोगे, ओके। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबको जानने की ज़रूरत रहती है दोस्तों, सैलरी जब आप एज अ ट्रेनी फिटर ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी $450 से लेके 600 के बीच होगी। अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द शिप, ओके। मोस्टली टैंकर में आप जाओगे तो 600-700 के आसपास मिल जाएगा, नो वरी। बट नॉर्मल जो बल्क कैरियर है, रोरो कंटेनर पे, मर्क्स में तो ट्रेनी फिटर है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। अदर कंपनीज में जैसे मुझे फिटर ने बताया, वो फर्स्ट टाइम उसने फ्लीट में ज्वाइन किया था, तो एज अ ट्रेनी फिटर उसे $450 मिल रहा था आज से 6-7 साल पहले। बट आज के टाइम में आई गेस $500-600 सैलरी हो गया होगा। तो उस हिसाब से दोस्तों बिगनिंग में आपका सैलरी 500 to 600 होगा। एंड जब आप ये फिटर बन जाओगे उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। मर्क्स में सैलरी फिटर की मोर देन $1500 है दोस्तों। अब मैं एग्जैक्ट बताऊंगा नहीं, क्योंकि इट्स नॉट गुड टू रिवील द कंपनी थिंग्स, सो दैट्स वाई इतना जान लो कि जो शिप पर एबी लोग होते हैं उनसे ज़्यादा सैलरी फिटर की है। एंड वन मोर थिंग, जब आप SCI में जाओगे, इन केस SCI कंपनी में जो इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देयर यू विल ट्रीट लाइक एन जूनियर ऑफिसर। वहाँ पर फिटर को पेटी ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए ये कोर्स का पूरा ये था, जो भी है मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ लगता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।